This is set 65/5/3. This set has come in March 2025. This is section A. This section comprises multiple choice questions, MCQs of 1 mark each. Its first question is, the principal value of cot inverse minus 1 by root 3 is, there are 4 options. We have to find the right one. And how we will do this sum? Let y is equal to cot inverse minus 1 by root 3. Cot y is equal to minus 1 by root 3. That is equal to minus cot pi by 3. Now this is minus. This comes in the second quadrant. So cot pi minus pi by 3. That is equal to cot 2 pi by 3. Now here we know that range of principal value of branch of cot inverse is 0 to pi. ये आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो कौन से इंटरवल में आती है, 0 से पाई के बीच में. तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए. एंड हेयर cot 2 pi by 3 is equal to minus 1 by root 3, and hence principal value of cot inverse minus 1 by root 3 is 2 pi by 3. Now second question is, if A is equal to matrix Aij is a 3 into 3 diagonal matrix such that A11 is 1, A22 is 5 and A33 is minus 2, then determinant of A is, there are 4 options. आपके पास A आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपकी और उसके आपके डायगोनल्स गिवन है A11, A22 एंड A33. सो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे विच विल कम आउट टू बी -10 एंड सो बी इज द ऑप्शन. नाउ इट्स थर्ड क्वेश्चन इज, if A is equal to KB where A and B are two square matrices of order n and K is a scalar, then there are again 4 options. Now A is equal to KB where A and B are two square matrices of order n. So आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? K raised to power n, determinant of B. And what is n? N is the order of the matrix. So B is the option. Now fourth question, if fx is equal to sin square ax upon x square if x is not equal to 0 and this is equal to 1 if x is 0, this is continuous at x is equal to 0, then the value of A is, there are 4 options. आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके इसके इक्वल है अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर x 0 के बराबर है दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस at x is equal to 0. This is given to us. We have to find the value of A. Now continuation के लिए क्या हो जाएगा? Limit of fx x tends to 0 is equal to f0. We know left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0. यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन दिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f0. fx is given sin square ax upon x square and here मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो किससे? ए स्क्वेयर से. सो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. अब ये आपका लिखा जाएगा, ए स्क्वेयर आप यहाँ ले लो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स होल स्क्वेयर. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस. एंड ये हमें पता है इसकी जो लिमिट होती है, हमने +1 में इसको किया हुआ है, वो 1 होती है. सो ए स्क्वेयर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वेयर. f0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू +-1. सो C इज द ऑप्शन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 12x is equal to determinant of 6 - 5 4 and 3, then the value of x is, there are 4 options. आपके पास ये दिया हुआ है, तो आप क्या करने वाले हो? इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और दोनों को इक्वेट कर दोगे. आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा. इट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 60 + 18 + 20. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98. x स्क्वायर इज इक्वल टू 49. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +-7. सो C इज द ऑप्शन. Now the sixth question is, if probability of A union B is 0.9
and probability of A intersection B is 0.4, then probability of A bar plus probability of B bar is, there are 4 options. Now probability of A union B, ये आपका फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B. इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास probability of A प्लस probability of B की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1.3. मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. So probability of this is 1 minus probability of A plus probability of B bar is 1 minus probability of B. This is equal to 2 minus probability of A plus probability of B, and 2 minus 1.3, that is 0.7. So D is the option. Now 7th question, if A is this matrix then A cube is, there are 4 options. तो आपने यहाँ पर 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है. पहले A को A से कर लो, फिर A स्क्वायर को अगेन A से कर लेना, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा. B इज़ द ऑप्शन. सो मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, और B इज़ द ऑप्शन हेयर. Now the 8th question, let A and B be 2 matrices of suitable orders, then which of the following is not correct? आपने इसमें से ये बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है. तो थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना. द वर्ड इज़ नॉट इज़ रिटन हियर, तो आपने बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आता है. ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, नहीं, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. सो डी इज़ द option. Now the 9th question is, the area of the region enclosed between the curve y is equal to x mod of x, x-axis x is equal to -2 and x is equal to 2 is, there are 4 options. Now equation is y is equal to x mod x. इसको रीराइट करके लिखो, y is equal to x square if x is greater than equal to 0 and y is equal to minus x square if x is less than 0. अगर x 0 से बड़ा है तो ये आपके पास mod of x आपके पास x हो जाएगा and this becomes x square. अगर x less than 0 आप वैल्यूज़ लेते हो तो ये mod of x minus x हो जाएगा और this becomes minus x square. एक हमने ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू -2 का, एक बनाना है x इज इक्वल टू 2 का. अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाने लगे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे आपका y 0 हो जाता है. अब बाकी वैल्यूज़ आप x ग्रेटर देन 0 लोगे, दैट वैल्यू कैन बी 1 2 ऑनवर्ड. सो y की वैल्यू अगर x 1 लेते हो y 1 हो जाता है, अगर x 2 लेते हो तो y 4 हो जाता है. तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो दिस लाइन इज़ द ग्राफ, दिस लाइन इज़ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स लेस देन 0. यहाँ पर x की वैल्यूज़ क्या लोगे, लेस देन 0 लोगे. तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर x लेस देन 0 तो x की वैल्यूज़ भी आप लेस देन 0 लोगे. सो लेट इट बी -1 -2, यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू, बट आई हैव टेकन दीज 2 वैल्यूज़. इफ़ x इज़ -1 सब्सिट्यूट करके देखो, y की वैल्यू -1 आएगी, x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू -4 आएगी. तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा. तो यहाँ पर ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू -2 का, ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू 2 का. और आपको इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, ये 2 ग्राफ का आपने एरिया बताना है, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का एरिया बताना है. तो यहाँ पर हो जाएगा -2 से 0, ये हो जाएगा 0 से 2. अब यहाँ पर जब 0 से -2 लोगे तो ये आप नेगेटिव लोगे, ये फंक्शन आपका जो भी है वो आप नेगेटिव में आएगा आपका फंक्शन, और यहाँ पर आपका फंक्शन पॉजिटिव आएगा. ये आपका इस एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा. तो आपका अगर ये आपका फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वो नेगेटिव होके प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा. अब मैं यहाँ पर इसका लिखने लगी हूँ, ये देखो -2 से 0, दिस ग्राफ इज -y dx प्लस 0 से 2 y dx. -y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -x स्क्वेयर. सो माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस एक्स स्क्वेयर dx 0 से 2. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
16/3। अब इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आंसर आपका आना चाहिए 16/3, सो बी इज द ऑप्शन। नाउ 10th क्वेश्चन इज, इफ fx is this is the greatest integer function, then the correct statement is A, f is continuous but not differentiable at x is equal to 2. B, f is neither continuous nor differentiable at x is equal to 2. C, f is continuous as well as differentiable at x is equal to 2. D, f is not continuous but differentiable at x is equal to 2. Now here B is the option. F is neither continuous nor differentiable at x is equal to 2. Now you see, आपने 11th में इसका ग्राफ बनाया था, तो अगर 11th में ग्राफ बनाया तो आपको ग्राफ याद है, तो आपको पता होगा ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा। अगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो यहाँ पर B इज द ऑप्शन। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, integrate cos 2x minus cos 2 theta upon cos x minus cos theta dx is equal to, there are 4 options and you have to find the right one. So आपने इसको इंटीग्रेट करना है। cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 and cos 2 theta can be written as 2 cos square theta minus 1. तो आपने इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, आपके पास आ जाएगा 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square theta plus 1 अपॉन cos theta cos x minus cos theta। ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास 2 कॉमन ले लो, इन द ब्रैकेट यू विल हैव cos square x minus cos square theta अपॉन cos x minus cos theta। इसके फैक्टराइज कर लो, आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x plus cos theta। इसका मतलब आपने यहाँ पर cos x dx इसको इंटीग्रेट करना है एंड cos theta dx इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो मैंने भी गलत लिख दिया था पहले, तो ये इसको ध्यान देना है। cos x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज sin x एंड 2 तो आपका बाहर आएगा ही आएगा, cos x की इंटीग्रेशन sin x है। नाउ दिस cos theta इज कांस्टेंट, सो दिस इज cos theta एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन x है प्लस c, सो दिस इज 2 sin x प्लस x cos theta प्लस c, सो दिस इज द आंसर। एंड यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपका कौन सा आता है, ए ऑप्शन आता है, sin x प्लस x cos theta। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना कि ये cos थीटा आपका कांस्टेंट है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये आपका कांस्टेंट आएगा, ये cos थीटा बाहर आएगा और यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का आपका x बनता है, तो ये दिस इज द आंसर, सो ए इज द ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, यू हैव टू इंटीग्रेट 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 1 and this is equal to, again there are 4 options, you have to find the right one. Now here इसको आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये आपका fx फंक्शन है, अगर इसकी आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये आता है, तो f डैश x अपॉन fx कभी भी आपके पास आ जाए, ये आपका फंक्शन है और उसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, log 5x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। इसमें अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1/5 log x माइनस 0, सो आंसर इज 1/5 log 6, सो ए इज द ऑप्शन। Now the 13th question is, the slope of the curve y is equal to minus x cube plus 3x square plus 8x minus 20 is maximum at, these are the 4 options. Now this is y is equal to this and slope निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं, that is minus 3x square plus 6x plus 8। अब हमको क्या करना है, we are to find where slope of the curve is maximized। हमारी स्लोप कब मैक्सिमम है हमें ये बताना है, तो क्या करेंगे, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, तो हमने डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नाउ हियर डेरिवेटिव इज ए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, देखो ये एक्स स्क्वायर में है, इसका मतलब ये पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड हो गया।
So derivative is a downward opening parabola. So maximum value कहाँ आएगी? इसके वर्टेक्स पे आएगी. So maximum value occurs at its vertex. वर्टेक्स यहाँ पर क्या है? -b/2a. तो b की वैल्यू यहाँ 6 हो गई, a की वैल्यू -3 हो गई. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, यू विल गेट 1. सो x = 1 को किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? फंक्शन में. y = -x³ + 3x² + 8x - 20 में सब्स्टिट्यूट करोगे. ना x = 1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे. आपकी वैल्यू आ गई -10. सो पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास? 1 and -10. सो स्लोप इज मैक्सिमम एट 1 - 10. सो A is the option. Now the 14th question. The integrating factor of the differential equation this is, there are 4 options. We have to find the correct one. Now इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपके पास आ जाएगा dy/dx = x + y cos x upon -1 + sin x. तो x के नीचे ये डिनोमिनेटर ले लो प्लस y के नीचे ये डिनोमिनेटर ले लो. हम ऐसे लिख सकते हैं. अब आप इसको इस साइड ले जाओ और इसको आप ऐसे लिख दो dy/dx + cos x upon 1 + sin x y = -x upon 1 + sin x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? e⁻∫ cos x upon 1 + sin x. तो ये आपके पास आ गया. ये आपके पास fx है, ये आपके पास f'(x) है. तो ये f'(x upon fx dx किसके बराबर होता है? log 1 + sin x. तो ये आपके पास आ जाएगा e log 1 + sin x. e और log कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 + sin x. सो विच इज द ऑप्शन? B इज द ऑप्शन. नेक्स्ट सम है आपके पास 15th. फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x + 2y इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस. एंड इन्होंने ये फिगर आपको दिया हुआ है. मैंने इसको देख के ये इस पे ये शेडेड पोर्शन किया है. तो आप यहाँ पर शेडेड पोर्शन कर दोगे. तो आपको बताना क्या है? द करेक्ट फिजिबल रीजन इज, कौन सा इसका फिजिबल रीजन है जो करेक्ट है. तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास. तो आप इसको कर सकते हो. ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इसको ईजिली बता सकते हो. सो करेक्ट फिजिबल रीजन इज AOEC. AOEC. So B is the option. Now the 16th question. The sum of the order and degree of the differential equation this is. There are 4 options. आपको इसका डिग्री बतानी है और आपको इसका ऑर्डर बताना है, फिर उनका सम करना है. तो आपका यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ऑर्डर 2 आ जाएगा. अगेन दिस इज़ द ऑर्डर और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री आपकी 1 आ जाएगी. ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, उनका सम करते हो तो 3 आता है. तो आपके पास C इज़ द ऑप्शन. So C is the option. Now question number 17. The respective values of magnitude of A and magnitude of B if given vector A minus vector B dot vector A plus vector B is equal to 512 and magnitude of vector A is equal to 3 times magnitude of vector B are. There are 4 options. We have to find the right one. Now write vector A minus vector B dot vector A plus vector B. This is equal to 512. So इसका dot product find करो. You will get this. Now scalar product is commutative. So आपके पास आ जाएगा now magnitude of vector A square minus magnitude of vector B square is equal to 512. इसकी जगह आप ये लिख दोगे, ये हमें given है. तो अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास magnitude of vector B is equal to 8 आ जाएगा और इसकी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A आ जाएगा. एंड द ऑप्शन इज C. एंड द ऑप्शन इज C बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज 24, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज 8 एंड दिस इज द C इज द ऑप्शन. नाउ द 18th क्वेश्चन. लेट वेक्टर A बी द पोजिशन वेक्टर whose tip is the point 2 minus 3. If vector AB is vector A, where coordinates of A are -4, 5, then the coordinates of B are, there are 4 options. Let O be the origin and P 2 minus 3 be the tip of the position vector A. So vector A is equal to OP vector is equal to 2i cap minus 3j cap.
Now A has coordinates -4 and 5. Let B has coordinates x, y. So vector AB is position vector of B minus position vector of A. So इसको आप ऐसे लिख सकते हो, position vector of B is this and position vector of A is this and vector A is this. इसको सॉल्व करोगे you will have -2i cap plus 2j cap is equal to xi cap plus yj cap. So x की coordinates -2 आ जाएंगे, y के coordinates 2 आ जाएंगे. So coordinates of B are -2 and 2. So C is the option. Now question number 19 and 20 are assertion and reason based questions. Two statements are given. One labeled assertion A and another labeled reason R. Select the correct answer from the codes A, B, C, D as given below. Now A, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B, both assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of the assertion A. C, assertion A is true but reason R is false. D, assertion A is false but reason R is true. ये आपका assertion और reason based question है. Its 19th question is the shaded portion of the graph represents the feasible region for the given linear programming problem. आपके पास ये फिगर दिया हुआ है. आपके पास एक शेडेड पोर्शन ये वाला है और एक शेडेड पोर्शन आपका इस लाइन के डॉटेड लाइन के नीचे का है. Now minimize z is equal to 50x plus 70y subject to constraints 2x plus y greater than equal to 8, x plus 2y greater than equal to 10, xy greater than equal to 0. Z is equal to 50x plus 70y has minimum value 380 at B 2, 4. The region represented 50x plus 70y less than 380 does not have any point common with the feasible region. Now reason R, this is a true statement because 50x plus 70y less than 380, 5x plus 7y is equal to 38 का जो ग्राफ है ये आपका डॉटेड लाइन है और इसके नीचे वाला जो रीजन है 50x plus 70y less than 380 का आपका ये वाला रीजन आता है. तो ये इसमें इस फिजिबल रीजन का कुछ भी कॉमन नहीं है एंड दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अब हम लोगों ने ये देखना है कि फर्स्ट जो आपका असर्शन ए है ये ट्रू है या फॉल्स है. असर्शन ए, कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए ए 0, 8, B 2, 4, C 10, 0. सो ए पे जो z में इसमें की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी 560 आती है, 2, 4 पुट करते हैं तो 380 आती है, 10, 0 पुट करते हैं तो 500 आती है. तो ये किस पॉइंट पे मिनिमम है? 2, 4 पे आपका 380 आता है, ये मिनिमम है. सो z 50x plus 70y has minimum value 380 at B 2, 4. तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है. एंड रीजन आर, द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x plus 70y less than 380 doesn't have any point common with the feasible region. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. So A is the option. Now 20th question, assertion A, let A is a set of x which belongs to R, x lies between -1 to 1. If f is a function from A to A, be defined as fx is equal to x square, then f is not an onto function. Reason R, if y is equal to -1 belongs to A, then x is equal to plus minus root -1 which doesn't belong to A. Now हमें यहाँ पर बताना है कि assertion A ट्रू है या फॉल्स है एंड रीज़न R ट्रू है कि फॉल्स है. पहले मैं सिर्फ assertion A को देखने लगी हूँ, तो रीज़न R को मैं नहीं देख रही, सिर्फ इसको बताने लगी हूँ कि ये आपका ऑन टू है या नहीं है. Now assertion A आपके पास ये है एंड f फ्रॉम A टू A, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है. यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन दोनों सेम है. fx आपका फंक्शन क्या है? x स्क्वायर. तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है. तो मैं यहाँ दो मेथड बताने लगी हूँ. तो पहला तो है कि आपने इसकी रेंज बतानी है और आपने इसका कोडोमेन आपको मालूम है ये है. अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आएंगे इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है.
तो यहाँ पर अगर डोमेन आपका -1 to 1 है, रेंज निकालने के लिए ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपके इसकी रेंज आ जाएगी 0 to 1। इसका मतलब रेंज आपकी ये है, कोडोमेन आपकी ये है, तो आपकी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। सो यहाँ पर एक सेकेंड मेथड मैं बता रही हूँ। We know a function is onto if every element in the codomain A has a pre-image in the domain A। अगर कोडोमेन में हम कोई पॉइंट लेते हैं और उसका एक प्री इमेज डोमेन में होता है तो ये आपका onto फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस लिया विच इज़ इन द कोडोमेन, एंड इस -1 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी ±√-1 विच डजेंट बिलोंग टू A, जो कि डोमेन में बिलोंग नहीं करता। इट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन द डोमेन A, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। अब आपका क्या हो गया, असर्शन A इज ट्रू स्टेटमेंट हो गई, एंड रीज़न R इज अगेन ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज रीज़न R में यही चीज़ बताई गई है और वो शो करता है कि ये आपका ऑन टू नहीं है। सो आपका assertion A is a true statement, reason R is a true statement, and reason R is the correct explanation of assertion A. So क्या आपका ऑप्शन हो गया, A is the option. Now section B. This section comprises 5 very short answer type questions of 2 marks each. 21st question. Find the domain of sin inverse x square minus 3. हमने इसकी डोमेन बतानी है, तो आपका ये x square minus 3 किस में लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में। तो यहाँ पर आप इसमें +3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 to 4। नाउ x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, सो x स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लीजिए, x -2 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा आता है तो आपके x किस में लाई करेगा, -2 to 2 के बीच में। नाउ सेकेंड, x स्क्वायर -2 इस साइड ले जाइए तो x स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे x -√2 x + √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू √2 x लेस देन इक्वल टू -√2। इसको आप नंबर लाइन पे ले लो। अगर आप इसको नंबर लाइन पे लोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ आपकी ओवरलैप कर रही है। तो इस एक इंटरवल आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक इंटरवल आएगा यहाँ से यहाँ तक। सिंस देयर इज इक्वलिटी साइन हियर, सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to -√2 and √2 to √2 and union of this interval and this interval. So this is the answer. Now question number 22. मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट्स हमारी बड़ी बड़ी होती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बट पेशेंस रखा करो स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार सम्स बहुत इजी होता है बट हम स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ते तो हमें सम डिफ़िकल्ट लगने लगता है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। इसलिए मेरा थोड़ा पर्पस होता है कि मैं आपको सम समझाऊँ, उससे पहले स्टेटमेंट थोड़ा क्लैरिटी से आपको सुनने को मिल जाए। तो मेरी प्लीज़ जब मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. लेट द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक हॉलो स्फीयर बी कांस्टेंट इफ द इनर रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस व्हेन द रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपका 2 मार्क्स का समय ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता, बट अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपको मालूम है 4/3 πr³ होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज 4/3 πr³ माइनस 4/3 πr³, वेयर कैपिटल R is the outer radius and inner radius I have denoted it by small r. So volume of a hollow sphere is this. Now small r is 2 centimeter given, capital R is 4 centimeter, this is given, dr by dt is 2 centimeter per second, this is given. यहाँ पर देखो inner radius increases at the rate of 2 centimeter per second. It means inner radius increases by this rate. So dr by dt is equal to 2 centimeter. अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास ये आया, इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लो,
आपके पास आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पर एक पहली लाइन थोड़ा ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक हॉलो स्फीयर बी कांस्टेंट, इसका मतलब v यहाँ पर कांस्टेंट है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है अब आपने। नाउ v हियर इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पर ये आप इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 3v/4 पाई इज इक्वल टू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब ये सारा कांस्टेंट है, सो आपके पास आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 3v/4 पाई। इनका दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 3r² dr/dt माइनस 3r² dr/dt एंड इस कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होता है 0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, कैपिटल R आपके पास 4 था, स्मॉल r आपके पास 2 था एंड dr/dt आपके पास 2 था। तो इसको आप सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास dr/dt क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब dr/dt इज़ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द आंसर। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। 23rd क्वेश्चन, ए मैन नीड्स टू हैंग 2 lanterns on a straight wire whose end points have coordinates A this and B this. Find the coordinates of the point where he hangs the lanterns such that these points trisect the wire. तो आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हैं एंड दीज पॉइंट्स ट्राइसेक्ट दिस लाइन एंड वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। सो अगर पी के जो कोऑर्डिनेट्स लोगे तो आपकी रेशो आ जाएगी 1:2। जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे इसकी रेशो आ जाएगी 2:1। इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना आपको आता है तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड आई थिंक इट्स इजी वन। नाउ 24th क्वेश्चन ए पार्ट, डिफरेंशिएट sin x अपॉन रूट cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सो y आपके पास आ गया sin x अपॉन cos x, मैंने इसको 1/2 ले लिया है, रूट को हटा के आई हैव रिटन 1/2 हियर। सो आपके पास आ गया sin x cos x माइनस 1/2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है। y आपके पास ये आ गया, डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx इज यूवी मेथड प्रोडक्ट रूल, तो उसके हिसाब से आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे cos x माइनस हाफ, तो यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर भी इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट cos x 1/2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos x 3/2। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x 1/2 cos x 3/2 प्लस साइन स्क्वायर x। इनका पावर ऐड हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा cos x होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos x 3/2। तो यहाँ पर दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज द आंसर। Now 24th question B part. If y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0. So I think ये 24th का A और B था, तो B is a bit easy. A थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था या कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग था, तो अगर चॉइस करनी होगी तो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए था। So y is equal to this, dy/dx निकाल लो, सबको निकालना आता है। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। सो इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पर वैल्यू डी स्क्वायर वाई और डी एक्स की कर दो और वाई की वैल्यू आप ये वाली ले लोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। नाउ 25th क्वेश्चन ए पार्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। नाउ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आपने अगर वेक्टर निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है तो आपका ये फॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपने वो जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी,
तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. Now 25th question B part. Let vector A, vector B and vector C be three vectors such that vector A dot vector B is equal to vector A dot vector C and vector A cross vector B is equal to vector A cross vector C. Vector A is not equal to 0. We are to show that vector B is equal to vector C. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस. तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C आ जाएगा. दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड दिस इज सेक्शन C. This section comprises 6 short answer type questions of 3 marks each. Its 26th question is fx is equal to sin 3x minus cos 3x, x lies between 0 to pi by 2, is strictly increasing. So this is the question and we are to solve this. So this is the question. Here fx is sin 3x minus cos 3x. आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया. f dash x is cos 3x d by dx 3x माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 3x डी बाई डी एक्स 3x. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x. ना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0. आपने इसको इस साइड ले गए तो ये आपके पास आ जाएगा 3 sin 3x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x. तो मैंने दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर दिया, 3 cos 3x से. इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा tan 3x इज इक्वल टू -1. नाउ x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, दिस इज गिवन टू अस. तो यहाँ पर ये 3x है, तो 3x लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 2. इसका मतलब 3x लाइज बिटवीन 0 टू 270. नाउ tan 3x इज -1 एंड 3x लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 2. 3x लाइज बिटवीन 0 टू 270. Now 3x is negative in second quadrant. यहाँ पर tan 3x is -1. ये कब नेगेटिव होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो tan 3x is tan pi minus pi by 4. बिकॉज ये 1 किसके हो गया, tan pi by 4 का. तो ये नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो इसको आप लिख सकते हो tan pi minus pi by 4. इट मीन्स tan 3x is equal to tan 3 pi by 4. 3x is equal to 3 pi by 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई, pi by 4. तो आप इंटरवल्स क्या लोगे, एक इंटरवल लोगे 0 से pi by 4. तो f डैश x आपके पास ये है. इस इंटरवल में f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है. आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो. मैंने यहाँ पर 30 डिग्री लेके दिखा दिया है आपको. एफ डैश एक्स को अगर यहाँ 30 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपके पास 0 + 3 आ जाता है एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. सो इन द इंटरवल 0 to pi by 4 फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब आप pi by 4 से pi by 2 ले लो. इस इंटरवल में एफ डैश एक्स 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, ये आपके पास एफ डैश एक्स है. अब मैंने भी इसमें एक वैल्यू पुट कर दी जो इस इंटरवल में थी. तो यहाँ से मैंने ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आई हैव टेकन 50 डिग्री. तो 50 डिग्री एक्स की वैल्यू लेके मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया है कि ये दिस इज लेस देन 0. सो इन द इंटरवल pi by 4 to pi by 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो दैट इज द आंसर. नाउ द 27th क्वेश्चन इज if a plus b plus c is 0 such that magnitude of a is 3, magnitude of b is 5, magnitude of c is 7, then find the angle between vector a and vector b. Now vector a plus vector b plus vector c is 0, vector a plus vector b is equal to minus vector c, and इसका स्क्वायर करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times vector a dot vector b is equal to vector c whole square. एंड इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़, तो आपके पास यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1/2. एंड cos थीटा का 1/2 होता है जब आपके पास थीटा की वैल्यू π/3 होती है. सो दैट इज़ द आंसर. 27th क्वेश्चन बी पार्ट. If vector A and vector B are units vectors inclined with each other at an angle of theta, then prove that
half magnitude of vector A minus vector B is equal to sin theta by 2. तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप इसको ऐसे लिख लोगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये आ जाती है. तो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्यूम्यूटेटिव होता है और इसका मतलब आपके पास ये आ गया. अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ पर वेक्टर ए इज़ यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर आप यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा कॉस थीटा. दैट इज़ 2 माइनस 2 कॉस थीटा. 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा. इट मीन्स 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया. अब आपके पास क्या आया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो अब आपके पास होल स्क्वायर आपके पास आया था 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाय 2. सो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, you will get this. So this is what you want to prove. Now 28th question. Solve the differential equation x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x. तो यहाँ पर dy by dx आप इसको ऐसे लिख सकते हो और this is a homogeneous differential equation. So y is equal to vx. dy by dx is equal to v plus x dy by dx. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके अंदर. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एंड यू विल गेट x dv by dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v. ये वाला v आपका इस साइड चला जाएगा तो अब आपके पास ये आ जाएगा. इसका LCM ले लो तो आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगा. सो x dv by dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos x. अब ये वेरिएबल सेपरेट कर लो तो आपके पास cos v dv is equal to 1 by x dx आ जाएगा. Now cos v dv is equal to 1 by x dx. Integrate both sides. You will get sin v is equal to log mod of x plus c. Instead of v, write y by x. You will get the result. So that is the answer. 29th question A part. The probability that a student buys a coloring book is 0.7. and she buys a box of colors is 0.2. The probability that she buys a coloring book given that she buys a box of coloring is 0.3. Find the probability that the student, first question, buys both the coloring book and the box of colors. Second, buys a box of colors given that she buys the coloring book. Now let A be the event that the student buys a coloring book and B be the event that the student buys a box of colors. So probability of A is probability student buys a coloring book, that is given to us 0.7, and probability of B, probability that the student buys a box of color, that is 0.2, again that is given to us. Now probability student buys a coloring book given that she buys a box of colors, that is equal to probability of A given B, that is equal to 0.3. So ये चीज़ें हमें दी हुई हैं. probability of A भी दिया है, probability of B भी दिया है और probability of A given B दिया. अब नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे कि आपने निकालना क्या है. Now the first question is find the probability that the student buys both book and the box of colors. Now the probability that he buys both book and the box of color, it means हमको इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, probability of A intersection B is equal to probability of A given B dot probability of B. ये आपके पास दोनों चीज़ें दी हुई हैं. So this is the answer. And second, find the probability student buys a box of colors given that she buys a coloring book. It means आपको probability of B given A निकालना है. तो probability of B given A is equal to probability of A intersection B upon probability of A. Substitute the values, you will get 3 by 35. So that is the answer. 29th question B part. A person has a fruit box that contains 6 apples and 4 oranges. He picks out a fruit 3 times, one after the other, after replacing the previous one in the box. Find
the probability distribution of the number of oranges he draws. Second, the expectation of the random variable number of oranges. Now a fruit box contains 6 apples and 4 oranges. Total number of fruit 10 हो गए, 6 + 4 10 हो गए. Probability of getting an apple is 6 by 10, 3 by 5 हो गए. Probability of getting an orange is 4 by 10, that is 2 by 5 हो गया. Here number of trials is 3. तो आपके पास अगर हम P ले लेते हैं, probability of drawing an oranges, उसको हम success मान लेते हैं, that is 2 by 5. And Q, probability of drawing an apple, उसको हम failure मान लेते हैं, that is equal to 3 by 5. So probability of X is equal to R, probability that R oranges are drawn, that is equal to 3CR P raised to power R Q 3 minus R. आपको ये फॉर्मूला आता है. तो when X is 0, कोई ऑरेंजेस ड्रॉ नहीं हुआ, तो when X 0 हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा 3C0 2 by 5 raised to power 0 and 3 by 5 raised to power 3 minus 0. ये सक्सेस है, ये फेलियर है, ये P है, ये आपके पास Q है. तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट दिस. नाउ P इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर R आपके पास 1 आ गया, तो इट मीन्स 3C1 2 by 5 raised to power 1 3 by 5 raised to power 3 minus 1. इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास 54/125 आ जाएगा. इसी तरह से probability of X is equal to 2. It means 2 oranges are drawn. R here is 2. Again you will write this, calculate it, you will get 36/125. When probability of X is equal to 3, again write R as 3 and calculate it, you will get 8/125. Probability distribution of X. X आपके पास 0 1 2 3 आ जाएगा, PX आपके पास ये आ जाएगा. इसको ऐड करके देख लो, 1 आना चाहिए. अगर आपका 1 नहीं आता है इसका मतलब समवेयर कैलकुलेशन में कोई आपकी गलती है. तो इसको अब आप EX निकाल लो. क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे और 3 को 8/125 से करोगे और उनको ऐड कर दोगे. तो इसको अब आपने इससे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 6 by 5. सो आंसर इज 1.2. नाउ 30th क्वेश्चन ए पार्ट, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो अब आप इसको कैसे लिख लोगे, इसको लिखोगे ax + b अपॉन x² + 3 + cx + d अपॉन x² - 5. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x² + 3 x² - 5. यू विल हैव 2x equal to ax + b x² - 5 + cx + d x² + 3. यहाँ पर आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना आपको आता है. तो अगर आप इसको कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे, यू विल हैव c a as 1 d as 0 and b as 0. आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन x² + 3 x² - 5 इज इक्वल टू x अपॉन x² + 3 प्लस माइनस x² - 5. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे और इसकी इंटीग्रेशन करोगे. तो इसकी इंटीग्रेशन, अब ये आपके पास f(x) है, ये आपके पास f'(x) है. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 log x² + 3 एंड माइनस इसकी इंटीग्रेशन आपका ये है, ये हो गया f(x), ये हो गया f'(x). सो दिस इज इक्वल टू 1/2 log x² - 5. सो दैट इज द आंसर. नाउ 30th क्वेश्चन बी पार्ट, इवेल्युएट integrate 1 to 4 mod of x - 2 plus mod of x - 4 dx. तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे 1 to 2 2 to 4. तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को रीराइट करके लिख लो. इफ़ x लाइज बिटवीन 1 to 2 तो आपका ये फंक्शन क्या बन जाता है, अगर x लाइज बिटवीन 2 to 4 तो आपका ये फंक्शन आपका ये बन जाता है. तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव दिस फंक्शन. इट मीन्स रीराइट करने के बाद आपका फंक्शन बना -2x + 6 इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2 एंड इट बिकम्स 2 इफ x लाइज बिटवीन 2 to 4. तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करने वाले हो. इसकी इंटीग्रेशन करो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 7 आएगा. Now 31st question. In the linear programming problem LPP, find the points giving maximum value for this subject to constraints this. तो यहाँ पर आप पहले
किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। तो इसका आपने ग्राफ, मैंने पॉइंट्स ले लिए, आपने ग्राफ आराम से ड्रॉ करिए, बड़ा इजी है ड्रॉ करना। अब आप इसका शेडेड पोर्शन करोगे तो दिस इज़ द शेडेड पोर्शन, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब आप इन कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट करोगे तो अब आप इसके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। तो नेक्स्ट पेज में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, एंड कॉर्नर पॉइंट्स को आप z में पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर z इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट 60, 30 एंड 120 एंड 0, 2 पे मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब आप चेक कर लीजिए। Now section D. This section comprises long answer type questions of 5 marks each. 32nd question. In a rough sketch, mark the region bounded by this and this. Using integration, find the area of the marked region. तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, फिर इंटीग्रेशन मेथड से उसका एरिया बताना है। तो आपके पास इक्वेशन है, तो इसको रीराइट करके लिखोगे। If x plus 1 greater than equal to 0, it means if x is greater than equal to minus 1, तो आपका ये बन जाएगा 1 plus x plus 1, it means 2 plus x, if x is greater than equal to minus 1. If x plus 1 is less than 0, it means if x is less than minus 1, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा 1 माइनस, ये आपका माइनस में आ जाएगा x plus 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस x आएगा if x is less than minus 1। तो अब आपका जो ग्राफ आपने बनाना है वो बनाना है y is equal to 2 plus x if x is greater than equal to minus 1, and this is equal to minus x if x is less than minus 1। अब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा, और अब आपने इसका जो एरिया बताना है, इस रीजन का बताना है और इस रीजन का बताना है। इट मीन्स आपने जो एरिया बताना है -2 से -1, -1 से 2, और यहाँ पर -2 से -1 आप ये वाला ग्राफ ले रहे हो, ये इस लाइन का ग्राफ ले रहे हो, और -1 से 2 आप इस लाइन का ग्राफ ले रहे हो। तो ये आपका इधर का ग्राफ है, ये इधर का। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड एरिया लिया -2 से -1, तो आपका यहाँ पर आएगा -x, और -1 से 2 लेते हो तो आपका आएगा x + 2। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 9 स्क्वायर यूनिट्स, दैट विल कम आउट टू बी 9 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अगेन ए लॉन्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 33। सो इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ठीक से पढ़ोगे तो आप इक्वेशन ठीक बनाओगे तो सम ठीक हो जाएगा। अगर आपने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ी, इक्वेशन ठीक से नहीं बनेगी और सम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन यू नीड पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 33, 3 students run on a racing track such that their speeds add up to 6 km/h. However, double the speed of the third runner added to the speed of the first results in 7 km/h. If thrice the speed of the first runner is added to the original speeds of the other two, the result is 12 km/h. Using matrix method, find the original speed of each runner. तो दोबारा 2 बारी पढ़नी पड़ेगी ये स्टेटमेंट आपको। So speed of the first runner x km/h, net speed of the second student y km/h, speed of the third is z km/h. तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी। तो यहाँ पर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करोगे। कैसे? ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। नाउ a इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट a इनवर्स। उसके लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करोगे। ये 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट ऑफ a करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे। कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको करते समय बहुत ध्यान से आप कोफैक्टर्स निकालोगे, किसी में भी कोई गलती नहीं आनी चाहिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अब आप इसको, ये आपके पास a11 है, a12 है, a13 है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसके बाद इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा। तो a इनवर्स आपने निकाला, सो दिस इज द a इनवर्स। ax इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो यहाँ पर आपके पास a इनवर्स आ गया, b आपके पास है, एंड
इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब इसको दैट इज़ द आंसर, इसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में देखोगे ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट, योर आंसर इज़ राइट। अगर ये सब्स्टिट्यूट करने पे आपको कोई वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपको ये रीचेक कर लोगे कि कहाँ आपकी गलती है। Now 34th question A part. For a positive constant A, differentiate A t plus 1 by t with respect to t plus 1 by t raised to power A where t is a non-zero real number. इसका मतलब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसमें आप ये u ले लोगे, ये v ले लोगे, तो u इज़ दिस, v इज़ दिस। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। इसका मतलब हमने du बाई dv निकालना है। तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, du बाई dt, यहाँ निकालेंगे dv बाई dt। तो du बाई dt, तो ये आपकी तरह a रेज टू पावर x की आपकी डिफ्रेंशिएशन है। एंड व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x? a रेज टू पावर x log a, आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता है। तो इसका मतलब du बाई dt a रेज टू पावर t प्लस 1 बाई टी log a विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 बाई टी। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट लाइन में करोगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब du बाई dt इज दिस। अब आप v ले लो, v इज t प्लस 1 बाई टी रेज टू पावर a। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, a t प्लस 1 बाई टी a माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस। विद रिस्पेक्ट टू दिस मतलब d बाई डी टी t प्लस 1 बाई टी। इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर टी स्क्वेयर। अब आप du बाई डी वी निकाल लो, du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वी। तो इसको रेसिप्रोकल लेना है, ये इसको तो रेसिप्रोकल लोगे तो अब आप ध्यान से लेना, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ 34th क्वेश्चन बी पार्ट। Find dy by dx if y raised to power x plus x raised to power y plus x raised to power x is equal to a raised to power b, where a and b are constant. Now this is not an easy sum. This is a difficult one. अगर दोनों में और था तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने ज़्यादा a ही किया होगा, b उन्होंने अवॉइड ही किया होगा। चलो लेट्स डू इट कि ये b आपका क्या है। अगर ये आपने पहले सॉल्व किया हुआ है तो आप वहाँ पर करके आ सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से एकदम वहाँ पर सोचना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होगा। सो यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। दिस इज़ अवर क्वेश्चन। यहाँ पर आप e और e रेज टू पावर log, इसके साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e रेज टू पावर लॉग, क्योंकि ई और लॉग कैंसिल हो जाता है। तो वाई एक्स के साथ अगर आप ये लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों के साथ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा ई एक्स, आपके पास साथ में आ जाएगा इधर, तो ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी है। तो एक्स लॉग वाई, वाई लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी। अब आप डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन में अब आप क्या करने वाले हो, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, e रेज टू पावर x log y, डिफ्रेंशिएट e रेज टू पावर x की डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है। इसका मतलब इसकी डिफ्रेंशिएशन यही आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ध्यान से देखो, हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो e रेज टू पावर x की डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपका e रेज टू पावर दिस है, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन ये आएगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ये करना पड़ेगा। इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज e रेज टू पावर y log x विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसी तरह से इसकी डिफ्रेंशिएशन भी आपकी ऐसे आएगी विद रिस्पेक्ट टू x log x। हाँ, तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर इसका प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो ये u है, ये v है, तो प्रोडक्ट रूल से आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा के ये आ जाएगा। सिमिलरली इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यहाँ पर ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी।
ये वाली y रेज टू पावर x हो जाएगी, यहाँ पर भी x रेज टू पावर y हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपके पास x रेज टू पावर x आ जाएगी। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर e और log हमने कैंसिल करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं ना। यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया अगेन, और इसमें अब आप dy बाई डी एक्स को अलग करने वाले हो। जिसके साथ dy बाई डी एक्स है उसको अलग से लिखोगे, और जो बिना dy बाई डी एक्स है उसको थोड़ा सा अलग से लिखोगे। तो ये मैंने इनको सेपरेट सा कर दिया है। आप dy बाई डी एक्स एक साइड पे रखोगे और बिना dy बाई डी एक्स के राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, और कॉमन लेके आप वैल्यू निकाल लोगे dy बाई डी एक्स की। सो दैट इज द आंसर। Now 35th question A part. Find the foot of the perpendicular drawn from the point this on the line this. ये easy question है। अब मुझे लगता है कि जिन्होंने ये 3D किया होगा तो उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका ये पॉइंट A है, 1 1 4 है, ये आपकी लाइन है, तो आपको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है। तो अगर आपके पास ये लाइन है तो M के आपके पॉइंट्स ये आ जाएंगे, और M के पॉइंट्स आ जाएंगे। इसकी आप डायरेक्शन रेशियो लिख लोगे, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। वहाँ से आपके पास A1 1 प्लस B1 1 प्लस C1 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आई थिंक दिस सम इज़ ईजी एंड लेट्स डू इट। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकाल लेंगे। इसको लेमडा से पुट करोगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am आप लिख सकते हो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो आपने am की डायरेक्शन रेशियोज लिख ली विच इज दिस, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। नाउ डायरेक्शन रेशियोज am is this, direction ratio of the given line is 5 to 3. So AM is perpendicular to given line. So this into this plus this into this plus this into this is equal to 0. तो यहाँ से lambda आ जाएगा which is 1/2. Lambda की value you have to find the foot of the perpendicular. So what are the coordinates of M are? Substitute value of lambda in 1. तो 1 आपको मैंने ये ले लिया है, इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आपके पास आ जाएगा -1/2 -1 and 3/2. So that is the answer. 35th question B part. Find the point on the line this at a distance of 2√2 units from the points this. Find the point on the line. इस लाइन पे पॉइंट निकालना है which are at a distance of 2√2 units from the point this. So coordinates of any point on the line this are, इसको lambda ले लो, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस इज 2√2, दिस इज गिवन टू अस। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे विच इज इक्वल टू 2√2। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा 0। तो आपके पास लैम्डा कॉमन ले लोगे, 22 लैम्डा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पेज पे मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगी। लैम्डा की वैल्यू -12/11 आ जाएगी। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज द आंसर। एंड दिस इज सेक्शन ई। दिस सेक्शन कंप्राइजेज 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 marks each. Case study 1. 36th question. Let A be the set of 30 students of class 12 in a school. Now let F be a function from A to N. N is a set of natural numbers such that function fx is equal to roll number of a student x. On the basis of the given information, answer the following questions. First is f is a bijective function? Second question is, give reasons to support your answer to 1. The third A part. Let R be a relation defined by the teacher to plan the seating arrangement of the students in pairs where R is equal to xy
such that x, y are roll numbers of students such that y is equal to 3x. List the element of R. Is the relation R reflexive, symmetric and transitive? Justify your answer. This B part is on the next page. Now third question, B part. Let R be a relation defined by R is equal to xy. xy are roll numbers of students such that y is equal to x cube. List the elements of R. Is R a function? Justify your answer. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपने आंसर देना है. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? A be the set of 30 students. We know A is a set of 30 students. 30 students हैं. F is a function from A to N where N is a set of natural numbers. And Fx is equal to roll number of the student X. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Is F is bijective function? Now F is not a bijective function. Bijective होने के लिए क्या चाहिए? It should be 1 1 and on 2. Now it is a 1 1 function, but it is not on 2. अब पहले 1 1 को एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर अगर मैंने ये बनाया है तो ये नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ आएगा, रोल नंबर्स आपके यहाँ आएंगे. ये 30 स्टूडेंट्स के नाम है यहाँ पर. ये नेचुरल नंबर है विच गोज टू इन्फिनिटी. नाउ वी सी हियर that each student in set A has a unique roll number. So it is 1 1. इसके साथ इसका है ये अगर ये किसी बच्चे का नाम है तो उसका रोल नंबर ये है, किसी बच्चे का नाम है उसका रोल नंबर ये है. तो ये 1 1 फंक्शन है. Each student in set A has a unique roll number. So it is 1 1. Now let me explain it again. Now F उसने पूछा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या चाहिए? 1 1 एंड ऑन 2 चाहिए. तो यहाँ पर हमारा ये 1 1 फंक्शन है बिकॉज ईच स्टूडेंट इन सेट ए हैज़ ए यूनिक रोल नंबर. तो ये आपका 1 1 फंक्शन बनता है. अब मुझे इसको ऑन 2 के लिए बताना है कि ये ऑन 2 है या नहीं है. ये ऑन 2 नहीं है. ये मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करने लगी हूँ. देखो ये सेट है स्टूडेंट्स का, ये है उनके रोल नंबर्स का. ये यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं और ये रोल नंबर आपके 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है. तो ये को डोमेन है जो आपका इन्फिनिटी है. इसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी आएगा. अब डेफिनेशन ऑफ ऑन टू क्या है? ए फंक्शन इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन द डोमेन. तो आपका ऑन टू की क्या डेफिनेशन है? एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज़ ए प्री इमेज. हर एक एलिमेंट का इसका एक प्री इमेज है. अब इसका हर एक एलिमेंट का तो प्री इमेज हो नहीं सकता बिकॉज इसमें 30 है, इसमें इन्फिनिटी है. तो हर एक एलिमेंट का तो इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है. सो ये ऑन टू नहीं है. हियर एन नेचुरल नंबर्स विच आर इनफाइनाइट. सेट ए इज फाइनाइट because there are 30 students, F from A to N. So every element in N codomain doesn't have pre-image in the A domain. So it is not onto. Now what is the second question? R set of all xy. xy are roll numbers of students such that y is equal to 3x. अब अगर आप इसमें रोल y किसके इक्वल है? 3x. x1 लेते हो y की वैल्यू 3 हो जाएगी. x2 लेते हो y की वैल्यू 6 हो जाएगी. x3 लेते हो y की वैल्यू 9 हो जाएगी. ऑनवर्ड. नाउ R इज a set of xy. xy are roll numbers of students such that y is equal to 3x. तो R के ये एलिमेंट्स आ गए. हमने क्या बताना है? Is the relation R is reflexive, symmetric and transitive. Now this relation is not reflexive, not symmetric and not transitive. अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ. Why? Now reflexive. If x belongs to R, it means x is equal to 3x. ये 2x is equal to 0 हो गया. x is equal to 0 हो गया. So it means roll number of students is equal to 0 हो गया. No, roll number of the students cannot be equal to 0. So it is not reflexive. It means x doesn't belong to R. So ये reflexive नहीं है. Symmetric में क्या होता है? If xy belongs to R, then y is equal to 3x. If yx belongs to R, it means x is equal to 3y. अब आप
y इज इक्वल टू 3x है, उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका मतलब y इज इक्वल टू 9y हो गया, इट मीन्स y 0 हो गया. अगेन r इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज रोल नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. x एंड y आर द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांजिटिव के लिए, इफ xy बिलोंग्स टू r इट मीन्स y इज इक्वल टू 3x. इफ yz बिलोंग्स टू r z इज इक्वल टू 3y. अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है xz बिलोंग्स टू r. अगर xz बिलोंग्स टू r करता है तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3x होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ देखो z इज इक्वल टू 3y, y की जगह 3x लिख दो, तो z क्या हो गया? 9x हो गया. सो दिस इज रॉन्ग. इट मीन्स xz डजंट बिलोंग्स टू r. It means r is not transitive. So it means r is not reflexive, not symmetric, not transitive. Now third B part, R be a relation defined by r is equal to xy such that x and y are roll numbers of the students, y is equal to x cube. List the elements of r. Is r a function? आप इसके एलिमेंट्स लिख दोगे. अगर आप x1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. x2 लेते हो y की वैल्यू 8 हो जाएगी. x3 लेते हो y की वैल्यू 27 हो जाएगी. तो ये आपने इसके लिस्ट बना दी. लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर इज दिस. इज आर ए फंक्शन? नाउ आर इज ए फंक्शन. इट इज ए फंक्शन बिकॉज नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट सबका डिफरेंट ही आएगा, तो दो का सेम नहीं है. दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, तो ये आपका फंक्शन है. सो इट इज ए फंक्शन बिकॉज नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड, इसका ये भी मतलब आता है एवरी एलिमेंट x मैप्स टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट y. हर एक एलिमेंट मैप करता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट y. सो ये आपका फंक्शन है. नाउ केस स्टडी 2, 37th क्वेश्चन. ए गार्डनर वांटेड टू प्लांट वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन. Hence, he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage plant, and 8 seeds of radish plant. The shopkeeper assured him of germination probabilities of brinjal, cabbage, and radish to be 25%, 35%, and 40% respectively. But before he could plant the seeds, they got mixed up in the bag, and he had to sow them randomly. दे हैव प्रोवाइडेड यू विद दिस फिगर. तो मुझे ये बहुत अच्छी बनानी नहीं आती, बट मैंने आपको एक रफ स्केच बना के दिखा दिया है कि ये रेडिश है, ये कैबेज है, ये ब्रिंजल है. तो उन्होंने इस तरह से सब्जियों की एक फिगर आपको दी हुई है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट. सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कैबेज सीड गिवन दैट the chosen seed germinates. Now its answer is, let B denotes number of brinjal seeds, that is 10, C denotes number of cabbage seeds, that is 12, and let R denotes number of radish seeds, that is 8. Now total seeds कितने हो गए? 30. So probability of choosing brinjal seed, that is 10 upon 30, that is 1 by 3. Probability of choosing cabbage seed, that is 12 upon 30, that is 2 by 5. Probability of choosing radish seed, that is 8 by 30, that is 4 by 15. Let G denotes the seed is germinated. Now probability of germination of the seed given that it is of brinjal. Probability brinjal seed is germinated, that is equal to 25 by 100, that is equal to 1 by 4. Probability its seed is germinated given that it is cabbage seed, so that is 35 by 100, that is 7 by 20. Probability of G given R, that is 40 by 100, that is 2 by 5. तो यहाँ पर हमने probability of B, probability of C, probability of R निकाल लिया. Probability of G given B, probability of G given C, probability of G given R वो निकाल लिया. Now first question, calculate the probabilities of randomly chosen seed to germinate. So what is the required probability? Probability of B, probability of G given B, plus probability of C, probability of G given C, plus probability of R, probability of G given R. Substitute the values and you calculate it. You will get 33 by 100, that is 0.33.
The second question, what is the probability that it is the cabbage seed given that chosen seed germinates? Probability of C given G, हमको ये फाइंड करना है. तो यहाँ पर probability of C given G, इसका फॉर्मूला लिख लो. आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, probability of C, probability of G given C अपॉन टोटल probability. ये हमने ऊपर फाइंड कर लिया था. That is equal to 33/100 and probability of C is 2/5. Probability of G given C is 7/20. कैलकुलेट कर लो, आपके पास आ जाएगा 14/100 into 100/33. आंसर इज 14/33. So that is the answer. हमारी ये तीनों सेट्स में जो केस स्टडीज़ हैं तीनों भी सेम है. 65/5/1, 65/5/2, 65/5/3, तीनों में हमारी केस स्टडी सेम है, सिर्फ उनका सीक्वेंस उन्होंने चेंज किया हुआ है. ये तीनों सेट्स की ये 3 ही केस स्टडीज़ हैं जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दी हैं. नाउ केस स्टडी 3, क्वेश्चन नंबर 38. ए कारपेंटर नीड्स टू मेक ए वुडन cuboidal box closed from all sides, which has a square base and fixed volume. Since he is short of paint required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. On basis of the above information, answer the following questions. First, taking length equal to breadth equal to x meter and height is equal to y meter, express the surface area S of the box in terms of x and its volume V, which is constant. Second, ds by dx. You have to find ds by dx. Third A part, find the relation between x and y such that the surface area S is minimum. And third B part, if surface area S is constant, the volume V is equal to 1/4 Sx minus 2x cube, x being the edge of the base. Show the volume V is maximum for x is equal to root S by 6. Now length is x meter, breadth is x meter, height is y meter. Surface area is 2 times length breadth plus breadth height plus height length. ये आपके पास surface area आ जाएगा ऑफ ए क्यूबॉइडल. वॉल्यूम हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा x²y. ना यहाँ पर y इज इक्वल टू v बाई x². v इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू v बाई x². तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें. तो आपके पास s इज इक्वल टू 2x² प्लस 2xy. इंस्टेड ऑफ y वी विल राइट v बाई x². तो हमारे पास s आपके पास ये आ जाएगा. सो वी हैव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x वेयर v इज कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पर एरिया को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड वेयर v इज ए कांस्टेंट. फाइंड ds बाई dx. तो आपको ds बाई dx तो निकालना आता है, इसकी डेरिवेशन तो आप निकाल ही लोगे ना. ds बाई dx इज इक्वल टू 2. ये आपके पास 2x हो गया, ये आपके पास 2v कांस्टेंट है और 1/x की डेरिवेशन -1/x² है. तो आपके पास ये डेरिवेशन आ गई. इसकी डबल डेरिवेटिव निकाल लो. डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और इट मीन्स s is minimum. Now we are to find relation between x and y. Now ds by dx is 4x minus 4v upon x². ds by dx को 0 ले लो. यहाँ पर आपके पास x³ आ जाएगा v. अब v इज इक्वल टू x² y वी नो, ये हमें पीछे मालूम है कि v इसके इक्वल है. तो इंस्टेड ऑफ v राइट x³. तो x³ लिख दोगे, इसको इस साइड ले जाओ, x² कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इन द ब्रैकेट. सो आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये x तो 0 हो नहीं सकता, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू y. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. Now third B part, prove v is equal to 1/4 sx minus 2x cube where s is constant. We are to show v is maximum for x is equal to root s by 6. Now s is equal to 2x² plus 4xy. v is equal to x² y. So हमारे पास y आ जाएगा s minus 2x² upon 4x. Substitute the value of y in v. ये जो v की y की वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v आपके पास ये आ जाएगा. तो
तो नाउ यू हैव v इज इक्वल टू एस एक्स माइनस 2x क्यूब अपॉन 4. सो v इज इक्वल टू 1/4 एस एक्स माइनस 2x क्यूब. तो यहाँ पर dv बाई डी एक्स निकालो, आपके पास आ जाएगा 1/4 s माइनस 3/2 एक्स स्क्र. डी स्क्र बाय वी, डी स्क्र वी ओवर डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र. दैट विल कम आउट टू बी माइनस 6x विच इज लेस देन 0. सो v इज मैक्सिमम. तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो, 1/4 s माइनस 3/2 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. इट मीन्स 3/2 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1/4 s आ जाएगा. एक्स स्क्र आपके पास इसको करोगे तो आपको एक्स स्क्र s/6 आ जाएगा. x इज इक्वल टू रूट s/6. इसका मतलब v मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू रूट s/6 होगी.